Now it is the next topic. It is about iterating data frame over rows and columns. What is iterating? Iterating is the process in which what we do, we start from the first row to the last row, reading rows of data frame one by one and processing these data read in each step. तो iterate करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें लूप की जरूरत होगी. एक लूप स्टेटमेंट यूज हम करेंगे and that loop statement will be used to read all the rows starting from the first row to the last row, and in each step we will process each of the rows. This is called iteration. This is I have told you about rows, but we can also do this column wise iteration भी हम कर सकते हैं. उसके लिए एक दूसरा फंक्शन यूज होगा, वो नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे. तो इफ वी वांट टू प्रोसेस द डेटा in each row one by one, then we will use the iter row function. Iter row function is the function that is available inside your data frame object, and this data frame object's iter row function, what it does, it always read rows one by one. So we will use this function along with the loop. So here is an example of this iteration. We are using a for loop and for in df dot iter rows. यहाँ हमने लगाया तो df dot iter rows, what it returns an object that has two things, that has a tuple containing the row and the row series. तो जो आपका डेटा फ्रेम है, इस डेटा फ्रेम में दो पार्ट होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए. दिस इज द रो इंडेक्स एंड दिस इज द एंटायर रो. दिस इज द एंटायर रो. तो दिस इज रो and this is row series. Here you can have any two variables inside this. I have used row and row series. The first variable row object will read the index of the row, and the row series will read the data frames row, and this will read first row in the first iteration of the loop, and the second at the second iteration of the loop it will read second row, and so on. So when you run this loop, what will happen? It will read row index and the values in that row as a series object, and when it read one row, what we will do, we will print the row index and the row series object. तो जो आउटपुट होगा वो किस तरह का होगा, वो यहां आप देख सकते हैं. At the first iteration, what it has read? It has read the row as 0. So value of row is 0, and the value of row series object will be this one. You can see it here. Print row. Print row has printed this statement, that is the row value of row, that is 0, and then the value of रो सीरीज ऑब्जेक्ट. तो सीरीज हमारा जो ऑब्जेक्ट बना उसमें नेम, बीएसटी, आईपी, ये तीन लेबल्स होंगे सीरीज के, डिफरेंट वैल्यूज के, एंड अजय 7882 विल बी द वैल्यूज अगेंस्ट ईच ऑफ द लेबल ऑफ द सीरीज. तो ये सीरीज हमारे पास यहां पर आती है, नेम, बीएसटी, आईपी, और इनके अगेंस्ट जो वैल्यूज हैं वो होंगे अजय 7882. आई होप कि यू हैव लर्न सीरीज वेरी वेल, सो दिस विल नॉट बी ए डिफिकल्ट थिंग. और इस सीरीज का ऑब्जेक्ट जो होगा, जो नेम ऑब्जेक्ट आपको बता रहा है सीरीज का, वो होगा 0. जहां से ये सीरीज शुरू हुई, जो रो लेबल है सीरीज का नाम बन जाता है. इसी तरह से आप देख सकते हैं 1 सेकेंड रो के लिए, थर्ड रो के लिए, एंड फोर्थ रो के लिए. तो जितने भी रोज आपके डेटा फ्रेम में होंगे उनको वन बाय वन ये रीड करेगा. यहां हमने इन्हें प्रिंट किया है, बट यू कैन यूज द कोड टू परफॉर्म एनी अदर ऑपरेशन ऑल्सो. Whenever you are reading the data from the data frame in iterative mode, you can perform any operation on the read data. और इसको आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं. कॉलम वाइज हम किस तरह से इसे करेंगे, ये हम नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेते हैं. दिस इज अनदर एग्जांपल. यहां हमें जो फंक्शन यूज करना है कॉलम वाइज रीड करने के लिए, वो होगा इटर आइटम्स. और जब कॉलम वाइज हम यूज करेंगे तो हम दो वेरिएबल लेंगे. अगेन यू कैन हैव एनी टू वेरिएबल्स. आई हैव डिफाइंड देम एज कॉल एंड कॉल सीरीज. Call means this one, the name, the label of the column, and call series means the values in that particular column.
and when this loop will run, this will print first the value of call, that means the label of the column name, and then it will print all the values 0 1 2 3, और ये एक सीरीज हमारी बन जाती है. सीरीज में इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 और उनके अगेंस्ट वैल्यू है अजय, ऋचा, प्रज्ञा एंड मोहित. एंड इन द सेम वे द BST कॉलम एंड द IP कॉलम. So this is how we can iterate over a data frame, either row wise or column wise. You have to practice them hard to learn them well. In the next part we will learn about CSV files. Let's start about the CSV files. What are the CSV files? CSV files are comma separated value files. These files are normal text files that contains the data in various rows, each of which can have multiple values separated by commas. बेसिकली जो कॉमा सेपरेटेड फाइल्स होती हैं वो प्लेन टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, जैसे आप नोटपैड में बनाते हैं. अब इन फाइल्स में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो कुछ इस तरह से किया जाता है कि पहली रो एक तरह से हेडर रो की तरह काम करती है, जिसमें कॉलम्स के नाम आ जाते हैं और हर कॉलम का नाम कॉमा सेपरेटेड होता है. फिर अगली जितनी भी सारी रोज हैं वो टेबुलर डेटा को कंटेन करती हैं. तो हर वैल्यू इन ईच रो, द एवरी वैल्यू इज सेपरेटेड बाय कॉमास एंड देयर माइट बी मल्टीपल रोज. It is a plain text file that can be opened in Notepad or any other text editor. Or this is basically a very common data storage format used on all the platforms. That's why it is of global nature. और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है. कभी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, एंड इफ़ यू आर कंसर्न्ड अबाउट द सॉफ्टवेयर कि वो सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर आपके टारगेट यूजर के पास होगा या नहीं होगा. अगर आपके पास एक्सेल में कोई डेटा बना हुआ है एंड यू वांट टू सेंड इट टू अ फ्रेंड दैट डू नॉट हैव एक्सेल, तो आप एक्सेल के डेटा को एक्सपोर्ट कर दीजिए CSV फाइल में. CSV फाइल उसके कंप्यूटर में जो दूसरा कोई सॉफ्टवेयर होगा जो CSV कॉम्पिटेंट होगा वो CSV को रीड कर लेगा, CSV कॉम्पिटेबल होगा, वो CSV को रीड करके डेटा को वहां डिस्प्ले भी कर देगा और यूज भी कर लेगा. तो CSV एक बड़ा कॉमन फॉर्मेट है और इसीलिए पांडास लाइब्रेरी हैज इंक्लूडेड द CSV फाइल मॉड्यूल. डेटा फ्रेम का जो कंटेंट है उसको हम CSV फाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. एंड इफ वी हैव अ CSV फाइल वी कैन लोड अ डेटा फ्रेम फ्रॉम दैट CSV फाइल ऑल्सो. तो दोनों ही डायरेक्शन में काम हो सकता है. डेटा फ्रेम से CSV फाइल बना सकते हैं, CSV फाइल से डेटा फ्रेम्स बना सकते हैं. किस तरीके से ये काम होता है पांडास में, आइए इसको देख लेते हैं. बहुत सिंपल तरीका है. जब आपको डेटा फ्रेम का डेटा CSV फाइल में सेव करना होगा तो आपको क्या करना है. द फर्स्ट थिंग, you have to use the data frame name, the object name, and then after a dot you have to call the CSV method to_CSV, and in bracket you have to specify the path of the file that will store the data. Here one example is given. मान लो data frame name is data frame name and dot to CSV, and I have specified here a file path. File path is d:/mydata df.csv. So how this path is specified? D drive में my data folder होगा, and inside that my data folder the file will be df.csv. अब d:, हमने यहाँ जो पाथ नॉर्मली हम स्पेसिफाई करते हैं हम सिंगल स्लैश यूज करते हैं, यहाँ हमने डबल स्लैश यूज किया है. ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि जो डबल स्लैश है वो इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि सिंगल स्लैश का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है. इट इज अ ब्रेक स्पेस कैरेक्टर और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, और इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है. तो वेन एवर वी नीड टू स्पेसिफाई अ स्लैश इन एनी पर्टिकुलर स्ट्रिंग, हियर दिस इज वन स्ट्रिंग बीइंग फॉर्म, तो यहां पर जब भी आप एक सिंगल स्लैश वाला कोई मीनिंग रखना चाहते हैं वहां आपको डबल स्लैश देना होंगे, अदरवाइज इट विल टेक अनदर मीनिंग ऑफ द स्लैश. तो ये एक तरीका होगा जिससे आप डेटा फ्रेम के कंटेंट्स को CSV फाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं. इसका मैं एक एग्जांपल आपको लाइव करके दिखा देता हूं. तो ये हमारी डेटा फ्रेम है DFM. इसके डेटा को अगर हमको पाइथन एक फोल्डर में हमको सेव करना है CSV फाइल में, तो हाउ आई कैन डू दिस. आई राइट हियर DFM dot to_CSV and I will specify the path as d:. I am not specifying any folder, I am directly specifying the name of the file. मैं यहाँ लिख देता हूँ DFM. You can have any name, data.csv, and you can close this here. You can close this string and
जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे द डेटा विल बी सेव्ड इन दिस पर्टिकुलर फाइल। अब डी ड्राइव के अंदर डेटा डॉट CSV नाम की एक फाइल होनी चाहिए, तो इसको हम एक बार प्रेस करके देख लेते हैं हमारे कंप्यूटर में क्या डी ड्राइव के अंदर डेटा डॉट CSV फाइल बनी है। डी ड्राइव में ये डेटा डॉट CSV आप देख सकते हैं, और व्हेन यू आर सीइंग दिस डेटा फाइल हियर एक्सेल्स आइकन इज अफिक्स टू दिस फाइल। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे कंप्यूटर में CSV फाइल के लिए एक्सेल सॉफ्टवेयर स्पेसिफाइड है, बट आई विल ओपन इट इन नोटपैड। हम इसे नोटपैड में ओपन करेंगे, राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ करते हैं और नोटपैड स्पेसिफाई करते हैं। यू कैन सी व्हाट एवर डेटा वी हैव स्पेसिफाइड देयर वो यहाँ पर आ गया है। जो डेटा हमारी डेटा फ्रेम में था आप देख सकते हैं मल्टीपल रोज यहाँ पर आ गई हैं, और इन ईच रो देयर इज कॉमा, लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये कॉमा यहाँ पर है जो वैल्यू को सेपरेट कर रहा है, और यहाँ पर पहला ये इसलिए जीरो है क्योंकि ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है ये इंडेक्स कॉलम है, इसलिए इसका कोई लेबल नहीं है, इसलिए ये जगह कहाँ पर खाली छुड़ी हुई है, एक एक्स्ट्रा कॉमा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ये इस तरीके से हमारी डेटा फ्रेम बनकर तैयार हो जाती है। डेटा फ्रेम से CSV फाइल कैसे बनती है ये अभी हमने यहाँ पर देखा। अभी हम वापस चलते हैं सिंटेक्स की तरफ, और अब हम देखेंगे हाउ वी कैन रीड CSV फाइल्स टू क्रिएट डेटा फ्रेम। CSV फाइल का यूज करके डेटा फ्रेम बनाना। अब CSV फाइल का यूज करके डेटा फ्रेम जब हम बनाएंगे तो सिंटेक्स हमारे पास होगा, क्योंकि हमारे पास डेटा फ्रेम तो होगा नहीं, ये ध्यान रखें कि क्योंकि ये स्टूडेंट हमेशा भूल जाते हैं कि कब हमें डेटा फ्रेम के नाम के साथ टू CSV लिखना है और कब हमें PD के साथ यानी पांडास लाइब्रेरी के साथ रीड CSV लिखना है। तो जब आपको डेटा फ्रेम से whenever you want to transfer the data from data frame to a CSV file, तो you will be having a data frame, you will already be having a data frame, और डेटा फ्रेम जब आपके पास है उस डेटा फ्रेम को आपको CSV फाइल में रखना है, तो आप क्या रखेंगे टू CSV, किसके साथ, डेटा फ्रेम के साथ डॉट लगाकर। लेकिन जब आपको डेटा फ्रेम बनानी है, अभी डेटा फ्रेम है नहीं, आपको CSV फाइल से बनानी है, तो आप डेटा फ्रेम तो है ही नहीं, तो इस समय जो फंक्शन मिलेगा वो आपको पांडास लाइब्रेरी में मिलेगा। पांडास लाइब्रेरी का एक फंक्शन है रीड अंडरस्कोर CSV। यहाँ पे यू हैव टू स्पेसिफाई द फाइल पाथ वेयर द फाइल इज एग्जिस्ट एंड इंडेक्स कॉल। यहाँ पर एक इंडेक्स कॉलम आपको बताना चाहिए, नहीं बताएंगे तो क्या होगा ये मैं एग्जांपल में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये इंडेक्स कॉलम आर्ग्यूमेंट जो है, इसके बिना और इसके साथ में दोनों एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ डायरेक्टली पाइथन में। ठीक है, हम चलते हैं डायरेक्ट पाइथन में, और अभी हमारा डेटा फ्रेम हमने बना दिया है। हमारा डेटा फ्रेम तो ऑलरेडी है DFM, लेकिन हम एक नया डेटा फ्रेम बनाएंगे। लेकिन ये फाइल का नाम याद रखिए डेटा डॉट CSV, ये फाइल हमारी D ड्राइव में है। अब इस फाइल से हम एक नया डेटा फ्रेम बनाएंगे DF डेटा, कोई भी नाम ले सकते हैं, हम DF डेटा बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से बनेगा। यहां हम लिखते हैं DFM, सॉरी, हमें एक नया डेटा फ्रेम बनाना है DF डेटा। DF डेटा विल बी created from PD dot read underscore CSV, और यहां पर हमको फाइल का पाथ देना है दैट इज HD data dot CSV, और इस तरह से ये हमारी डेटा फ्रेम बन जानी चाहिए DF डेटा। अभी आप अंतर देखिएगा, ध्यान से देखिए, अंतर देख लीजिए। यहाँ पर डेटा फ्रेम तो हमारा बन गया है, लेकिन इस डेटा फ्रेम में एक समस्या है, जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम था ये वैसा नहीं बना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा कॉलम जुड़ गया है जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में नहीं था, जो हमारा इंडेक्स था बेसिकली। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कॉलम हमारे पास जुड़ जाता है और इंडेक्स की जगह पर न्यूमेरिकल इंडेक्स ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो इफ यू वांट कि जो CSV फाइल में सबसे पहला कॉलम है वो इंडेक्स बन जाए, तो CSV फाइल में जो कॉलम्स हैं वो हैं 0, 1, 2, इस तरह की इंडेक्सेस हैं उसमें। आप चाहते हैं जो फर्स्ट कॉलम है वो इंडेक्स बने, तो उस इंडेक्स बनने के लिए यहां पर आपको एक एडिशनल आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन के साथ देनी होगी। ठीक है, एक बार हम फिर से इसी काम को करते हैं विद दैट एडिशनल आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाइड। ठीक है, मैं सेम कमांड रन करूंगा, दिस सेम कमांड हियर,
और इस समय हम यहाँ देंगे साथ में इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल, दिस इज द नेम ऑफ आर्ग्यूमेंट, और यहाँ हम बताएंगे कि हमें फर्स्ट जो कॉलम है दैट इज एट प्लेस 0, उसको हमको इंडेक्स बनाना है। अब देखिए डीएफ डेटा कैसा बनता है। सो नाउ द डीएफ डेटा इज एक्यूरेट एज वी हैव क्रिएटेड ओरिजिनली। ये हमारा इंडेक्स हो गया रोज का, और ये हमारे कॉलम जैसे थे वो उसी तरीके से यहां पर हमारे पास आए। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से डेटा फ्रेम के डिफरेंट कॉलम्स को हम सीएसवी फाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं और सीएसवी फाइल से हम वापस डेटा फ्रेम बना सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डेटा फ्रेम्स बेसिक्स। थैंक यू।